بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں عبدالغفار مولانا لیکچرر ان کامرس ایٹ گورنمنٹ ڈگری کالج پیپرنا پنجاب۔ اس لیکچر پریزنٹیشن میں آج ہم فرسٹ ایئر کامرس کے اسٹوڈنٹس کو پرنسپل آف اکاؤنٹنگ کے ٹاپک انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کے بارے میں خلاصہ کریں۔ لرننگ آبجیکٹو نمبر 1۔ After studying this chapter, students should be able to understand and explain accounting definition and its process, understand importance of accounting information, define difference between bookkeeping and accounting, identify users of accounting information. Learning objective number 1, accounting definition. The American Accounting Association in 1966 defined accounting as the process of identifying, measuring, and communicating economic information to permit informed judgments and decisions by the users of information. American Accounting Association نے 1966 میں اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے دی کہ اکاؤنٹنگ ایک پروسیس ہے۔ اس پروسیس کے تحت اکنامک انفارمیشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا، میجر کرنا اور کمیونیکیٹ کرنا ٹو دا یوزرس آف انفارمیشن، اس سارے عمل کو اکاؤنٹنگ کہا جاتا ہے۔ آئیے اس ڈیفینیشن کو وضاحت کے ساتھ ان اگلی سلائیڈز میں سمجھتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ از دا پروسیس۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر پروسیس کے 3 بنیادی اسٹیپس ہوتے ہیں: ان پٹ، پروسیس اینڈ آؤٹ پٹ۔ اکاؤنٹنگ پروسیس کا ان پٹ ہوتا ہے ٹرانزیکشنز۔ یہ ٹرانزیکشنز وہ مالی معاملات ہوتے ہیں کاروبار کے جنہیں اکاؤنٹنگ میں ٹرانزیکشنز کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہاں ایکٹیویٹی نمبر 1 ٹو آئیڈینٹیفائی بزنس ایکٹیویٹیز، جیسا کہ یہاں پہ ایک سیلز پرسن ہے، وہ کار سیل کر رہے ہیں لیڈی کو، اور لیڈی اس کار کی قیمت پے کر رہی ہے۔ کیونکہ اس میں اکنامک ایکٹیویٹی، اس عمل سے ایک اکنامک ایکٹیویٹی عمل میں آ رہی ہے، تو یہ ایکٹیویٹی بزنس ٹرانزیکشنز کا حصہ بنتی ہے، اور انہی ٹرانزیکشن کی بنیاد پر اکاؤنٹنگ ریکارڈ کو مینٹین کیا جاتا ہے۔ اب اگلا اسٹیپ اس پروسیس کا ہے اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو مینٹین کرنا۔ اکاؤنٹنگ ریکارڈز کو کرونالوجیکل ڈیٹ وائز مینٹین کیا جاتا ہے تاکہ ہر ٹرانزیکشن کا ڈاکیومنٹری ایویڈنس پروف رکھا جائے، اور اس پروف کو اکاؤنٹنگ ریکارڈز میں سسٹمیٹیکلی ریکارڈ کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کس وقت کس ٹرانزیکشن کو ادراج کیا گیا۔ اس اکاؤنٹنگ ریکارڈ کی بنیاد پر اکاؤنٹنگ پروسیس کا آؤٹ پٹ عمل میں آتا ہے، اور یہ آؤٹ پٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی صورت میں عمل میں آتا ہے۔ یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کمیونیکیٹ کی جاتی ہے یوزرس آف انفارمیشن کے ساتھ۔ اب یہ یوزرس آف انفارمیشن ہم اگلی سلائیڈ میں وضاحت کے ساتھ بات کریں گے۔ عموماً یوزرس آف انفارمیشن اونرس اینڈ کریڈیٹرس ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا سرمایہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، اونر کا سرمایہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف کریڈیٹرز وہ لوگ، وہ ادارے جنہوں نے کاروبار کو قرض دیا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس انفارمیشن کا مراسلہ انتہائی ضروری ہے تاکہ وہ یہ جان سکیں کہ کاروبار کی مالی صورتحال کیا ہے، کاروبار آیا معاشی طور پہ استحکام کی صورتحال میں ہے یا یہاں کوئی مسئلے مسائل ہیں، کوئی فائنینشیل لاس تو نہیں ہو رہا، بزنس سبسٹینشیل پروفٹ گین کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ یہ ساری معلومات، ان سارے سوالات کا جواب آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے تحت ملتا ہے۔ Importance of accounting information. Accounting is a system that identifies, records, communicates information that is relevant, reliable, comparable,
to help users of this information to make better decisions. अब यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कितनी अहमियत है। अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसके तहत आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन, किस इंफॉर्मेशन को, वो इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट हो, जो रिलायबल हो, जो कि कंपेरेबल हो, ताकि इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर यूजर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन कैन मेक बेटर डिसीजंस, बेहतर फैसला साजी कर सकें। कारोबार के मुंसलिक जितने भी फैसले हैं वो बेहतर तरीके से किए जा सकें। अब यहाँ पे एक बात गौर तलब है कि अकाउंटिंग एक सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। किस इंफॉर्मेशन को? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि कारोबार में ट्रांजैक्शंस अमल में आती हैं। अब बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं इसका पता लगाया जाए, इसे आइडेंटिफाई किया जाए। वो ट्रांजैक्शन जिसमें माली मामलात का लेन देन हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मौशी सरगर्मियां हो जिसमें पैसों की लेन देन हो, ऐसी एक्टिविटी को अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करता है। उसके बाद इन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड का एक ऑथेंटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। इस रिकॉर्ड की बुनियाद पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुरतब की जाती हैं और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूजर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। अब ये इंफॉर्मेशन सेहतमंद तभी हो सकती है, रेलेवेंट टू दीज इंफॉर्मेशन यूजर्स तभी हो सकती है जब ये रेलेवेंट हो। अब ये रेलेवेंसी इसकी क्या है? इंफॉर्मेशन एक्सक्लूसिवली कंसर्न होनी चाहिए कारोबार के एक्टिविटीज के साथ। इस इंफॉर्मेशन में इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो कि मालिक का पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ज़ाती मामलात हैं, ज़ाती जो एक्टिविटीज हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन में जस्ट रेलेवेंसी तभी आप इंश्योर कर सकेंगे जब आप बिजनेस एक्टिविटीज को, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इसमें शामिल करेंगे। रिलायबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे? जब आप ट्रस्ट वर्दी इंफॉर्मेशन, जो सही मालूमात है, वो आप कम्युनिकेट करेंगे यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ, तभी आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। तो इसलिए इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होनी चाहिए, कंपेरेबल। इंफॉर्मेशन पिछले साल के मवाजना इस साल की परफॉर्मेंस के साथ करके दिखाए, तभी ये इंफॉर्मेशन कारामद साबित होगी बिजनेस इंफॉर्मेशन यूजर्स के लिए, क्योंकि इस कंपैरेबिलिटी की बुनियाद पर बर्ड आई व्यू ऑफ द बिजनेस मिलता है, जिससे ये पता पड़ता है कि हम पास्ट में क्या कर रहे थे, हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, और प्रेजेंट की जो एक्टिविटीज है इससे तायुन लगाया जा सकेगा कि हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। तो इसलिए फैसला साजी के लिए कंपैरेबल इंफॉर्मेशन होना इंतहाई जरूरी है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन किसी भी कारोबार के लिए कितनी मुफीद है। इस इंफॉर्मेशन के तहत कारोबार के फ्यूचर के मुतालिक फैसला साजी की जाती है। तो इस इंफॉर्मेशन को रिलायबल, रेलेवेंट, कंपैरेबल होना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आइए अब जानते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क है। Bookkeeping is the recording of financial transactions and events either manually or electronically. Bookkeeping एक ट्रांजैक्शंस को, माली मामलात को रिकॉर्ड करने का एक अमल है। इस अमल को हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब ये अमल हम मैनुअली कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे रिकॉर्डिंग सिस्टम के ऊपर। आया हम हाथ से रजिस्टर्ड जैसे मेंटेन किए जाते हैं, कैश बुक हो गया, एंट्रीज, जनरल लेजर हो गया, इन्वेंट्रीज का लेजर हो गया, ये लेजर अगर आप मेंटेन करते हैं तो ये आपका अकाउंटिंग सिस्टम डिपेंड करता है। आप
मैनुअली रिकॉर्ड कर रहे हैं या आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड के सिस्टम के ऊपर। जबकि अकाउंटिंग इससे कहीं बड़ा नजरिया है। इसमें शामिल है, इट इंक्लूड्स identifying, measuring, recording, reporting, and analyzing business events and transactions, which helps information users to make economic decisions. अकाउंटिंग इससे कहीं बड़ा नजरिया है जिसमें फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, मेजर किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं और उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर एनालिसिस तज्जिया किया जाता है कि आया कारोबार बेहतर सिमत में जा रहा है या नहीं, आया कारोबार प्रॉफिटेबल है या नहीं, कारोबार के असासाजात कितने, कारोबार मकरूज कितना है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब आपको मिलती है तो आप इकोनॉमिक डिसीजंस इफेक्टिवली कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़े फर्क हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। उम्मीद है कि आप इसको बेहतर तरीके से समझे होंगे। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैंने अमूमन हर स्लाइड में यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का तस्करा किया है, तो इस स्लाइड में हम इसका जरा खुलासा करते हैं कि ये यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है। यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दो तरह के लोग होते हैं, एक एक्सटर्नल टू द बिजनेस होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल यूजर्स कहते हैं, और दूसरे इंटरनल यूजर्स जिन्हें हम एम्प्लॉयज भी कहते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में लेंडर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स। लेंडर्स वो इदारे हैं जिन्होंने कारोबार को कर्ज दिया है, जैसा कि बैंक हो गया, बैंक से लोन लेकर कारोबार को चलाया जाता है। तो ऐसे इदारे इकोनॉमिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इंतहाई मुफीद होती है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। शेयर होल्डर्स, ये लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में शेयर होल्डर्स, मालिकान को शेयर होल्डर कहा जाता है। ये हिस्सेस के मालिक होते हैं और ये इस बात की इंफॉर्मेशन रख रहे होते हैं कि आया कारोबार में कितना प्रॉफिट गेन हुआ है, ताकि इस प्रॉफिट में से इनको पर शेयर कितना शेयर मिल रहा है, ये इसलिए इस इंफॉर्मेशन को भी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। गवर्नमेंट इस इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर टैक्सेस लगाती है, कस्टमर के लिए इंतहाई मुफीद होती है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट शाया करते हैं बिजनेस के मुतालिक, तो इसलिए इनके लिए भी इंतहाई अहम होती है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जबकि इंटरनल यूजर्स, एम्प्लॉयज, उनके लिए तो वैसे ही बहुत अहमियत की हामिल होती है। सेल्स हजम को सेट करना, बजट के तखमीने लगाना, इंटरनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का तयन करना, माली मामलात का किस तरह से हम बिजनेस को चला रहे हैं उसको देखभाल करना, ये सब के सब एम्प्लॉयज के यूज में, रोजमर्रा के यूज में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आती है। तो इसलिए ये भी इंतहाई अहम तरीन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Chapter and homework assignment for students of School of Accounting. Question number 1. Define accounting and explain in detail importance of accounting information. Question number 2. Define difference between bookkeeping and accounting. Question number 3. Write down detailed note on users of accounting information. Yes, homework assignment है students के लिए, ताकि students इस lecture presentation का follow up दे सकें. Thank you so much.